इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय। सशक्त हाथम दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में भाजपा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श भाग्य अश्व शक्ति यशोवंश इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेना जंग प्रशस्ति पदक के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज के शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्ध T-90 नेतृत्व 74 आर्मर रेजिमेंट के कैप्टन संतोष सिंह कर रहे हैं। T-90 भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामक और बीएमपी का ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग वेहिकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को तय कर हम सामना कर नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang, and the vehicle features the quick reaction force vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle Medium, also called Tirupurantam, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shiv Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं बांध के, जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर विनाशकारी मिसाइल वीरावेल वेट्रीवेल विजय भाला साहसी भाला। Next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm
Ballard rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery, leading this impressive display as captain in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting base next is the equipment of DGIS, aerial-based sensors on the common grid. VSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, VSS Mountains, commanded by Major Vikash of 621. Cutting-edge analytics makes the new VSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दो, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम यह तैनात किया जा सकता है। Witnessed the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production, in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash e Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capability. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles. सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Center and School, Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center. 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Formed on 12th October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahan Regiment has been honored with 12 years honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार की आस्था कहती है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के भारत के दौरान राज्यपालों के तौर पर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 electronics. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri. Corps of Signals के बाद आधार पर भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार कुल्लीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह
ready of the musician first personnel marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Pati, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon. As the vanguard of the naval marching contingent is the naval tactics which advocates strong, armed navy capable of protecting India's Nagaya. ये शक्तिशाली युद्ध पोत न केवल स्वदेशी युद्ध पोत डिजाइन और निर्माण में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करते हैं, बल्कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी को मजबूत करता है। Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path of the Indian Air Force. Marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band. With steady steps, marching fearless and true, the guardians of the sky, adorning blue. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में। कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्क्वाड का ढेवा संधारण चौक। ये धरा ये गगन ये पर्वत ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आदर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ करती है। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सशस्त्र बलों को प्रारंभिक भाग में एक ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप के साथ हाथी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित करना, चाहे समंदरों की गहराई को राफिया हो या आसमान जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं, दक्षिणी कमान उत्तम अधिकारी पपलूर डी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारी एवं अधिकारी एडविन रीड। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखना। It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The Sabra showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The Sabra highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving effort. A stranded fisherman signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting day, we have the capital of India's pride, defense, research and development, organized by a multi-layered air defense system, protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार। This magnificent boat acting called Sentinels of the Northeast have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning their adulation as the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karampreet Singh from most of the country. Marching in unison, the Assam Rifles Band proudly plays the Assam Jet. कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुनई नरिनी ध्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइब्रेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on cultural strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety.
और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अपना मासिक दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी निदेशालय की वही गाए जा कि जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा तो शेर हिंद आगे बढ़ मरने से तू जरा न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा ये जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पथ पर बॉयज की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश महाराष्ट्र निदेशालय इसके अंतर्गत 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता की कमान सूबेदार मेजर प्रतिशत संभाल रहे हैं। इस दस्ते ने 94 The dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150 Next, Kamriyar and Shoa Shuru. महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए संजोड़ी हुई विकास के रिश्ते को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर इंडिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और विकास यात्रा को दिखाया गया है। With the legacy of Andhra protected artisans for future generations. Included in the Guru Granth Sahib. मिले
Savyapart next, the tableau of Bihar, the sacred Bodhi tree. गाँव के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से डिजाइन पोटली Next up, the tableau from Madhya Pradesh showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान बारंबार तू कर्नाटक राज्य की अगली झांकी आधारित है वहाँ के ऐतिहासिक लकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाक्षेत्र का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान शिव को समर्पित displaying the magnificent yards and ancient Tamil string instruments and its rise as a creative economic powerhouse. विरासत भी विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की यह झांकी भारत की विविधता निर्माण विभाग की संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित करती हुई झांकी में भारत के संविधान को As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. यह नृत्य रचना विकसित भारत विरासत की विकास की और एक ढोल जैसी पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का बहुत बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में आस्था का एक महाकुंभ दिल्ली में गणतंत्र का राष्ट्र निर्माण का महाकुंभ में जहां घाटों पर भक्ति के स्वर गूंज रहे हैं, कर्तव्य पथ पर संगीत की धुनें और नृत्य की भाव का प्रवाह हो रहा है और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे
है वहाँ तक जाते जाते, लेकिन मिली हमें 10 बजे जाके एंट्री मिली है। बड़ा हाथ पैर जोड़ने के बाद एंट्री मिली है। अभी मैं इंडिया गेट के कर्तव्य पर्व का परेड देख के आ चुका हूँ। लाल किले, देखिए लाल किले तक परेड आती है, विजय चौक से लाल किले तक। आप लोग वहाँ नहीं मिलता है ना पास वगैरह, तो यहाँ देख सकते हो 11:15 बजे के आसपास निकलती है परेड। ये देखिए ये परेड निकल रही है। ये सीआरपीएफ का यहाँ से देखिए सीआरपीएफ की बैंड निकल रही है। सीआरपीएफ आरपीएफ का दस्ता यहाँ से निकल रहा है मार्च करते हुए। और बड़ा ही गौरव की बात होती है ऐसे जगह पे रहना। और उस समय जब आपके सामने से, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी का भी पास मिले और उसमें भी हम जाएं। देखिए आप लोग